Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Noor School and College Mansera. Dear student, my name is Qasim and I am your chemistry teacher. Dear student, in the last lecture in school we have discussed about atomic number and mass number. So what is atomic number? Atomic number of an element is the number of protons present in the nucleus of an atom of that element is called atomic number. Second, how we represent atomic number of element. Atomic number is represented by capital Z. What are the example of atomic number? Hydrogen have 1 protons, so its atomic number is 1. Oxygen have 8 protons in their nucleus, so its atomic number is 8. Similarly, sodium have 11 protons, so its atomic number is 11. Mass number. What is mass number? The sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number. Mass number is equal to the number of protons plus number of neutrons present in the nucleus of that atom. Representation. Mass number is represented by capital A. Examples. Atomic number of carbon is 6. It's mean that number of proton is equal to 6, and we know that electrons and proton are equal, so number of electron is also equal to 6. If we find mass number of carbon, so mass number of carbon is equal to proton plus neutrons. Proton is 6 and neutron is also 6, so 6 plus 6 is equal to 12. So mass number of carbon is 12. These are some main points of previous lecture. Now student, in this lecture we discuss about relative atomic mass. What is relative atomic mass? First of all, we know about atomic mass. Atomic mass क्या होता है, उसके बाद हम relative atomic mass को समझेंगे. Atomic mass, mass of a single atom of an element is called atomic mass. किसी भी एलिमेंट के सिंगल एटम का जो मास होगा, वजन होगा, उसी को हम बोलेंगे एटॉमिक मास. ओके. नेक्स्ट, mass of an atom in grams or kilogram is ranging from 10 raised to power minus 24 to 10 raised to power minus 22 ग्राम. एक एटम का जो मास ग्राम में और किलोग्राम में तकरीबन 10 रेस्ट टू पावर माइनस 24 से लेकर 10 रेस्ट टू पावर माइनस 22 ग्राम तक होता है. ये बहुत ही छोटा वज़न होता है एक एटम का. Measuring such a small masses are not only impossible but also impractical work. इतने छोटे मास को मेजर करना इम्पॉसिबल नहीं बल्कि इम्प्रैक्टिकल वर्क होता है उस टाइम, बल्कि ये मेजर करना बड़ा डिफ़िकल्ट वर्क था. आजकल हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से किसी भी सिंगल एटम के मास को इजीली मेजर कर सकते हैं. Therefore, it is recommended to express the masses of atom by comparing with the mass of standard atom. उस टाइम
किसी सिंगल एटम के मास को प्रैक्टिकली मेजर करना इम्पॉसिबल वर्क था, इसीलिए उस टाइम साइंटिस्ट ने एक एलिमेंट को स्टैंडर्ड करके उसके अगेंस्ट बाकी एटम के मासेस को कंपेयर किया गया। द एटम chosen nowadays as a standard for comparison is carbon 12. Dear student, उस टाइम हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया, उसके बाद ऑक्सीजन को माना गया, उनमें कुछ ड्रॉबैक्स थी आजकल, जिसको उसके बाद कार्बन को माना गया कार्बन 12, और जो आजकल भी माना जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि द एटम चूजन नाउअडेज एज अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन इज कार्बन 12। कार्बन 12 आजकल भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है। कार्बन 12 के अंदर 12 यूनिट होते हैं। कार्बन 12 विच हैज़ अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 यूनिट्स। ये हम बाद में देखेंगे कि 12 यूनिट कहाँ से आते हैं। कार्बन 12 के अंदर याद रखिएगा 12 यूनिट का वजन होता है। ये तो स्टूडेंट हमने एटॉमिक मास क्या होता है उसको डिफाइन किया, और उसके बाद हमने ये बताया कि एक एटम के वज़न को मेजर करना डिफ़िकल्ट वर्क था, और उसके लिए एक कंपेयर करने के लिए एक एटम को स्टैंडर्ड लिया गया और कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया गया, जिसके अंदर 12 यूनिट होते हैं। अब स्टूडेंट डिफाइन करते हैं हम रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? The relative atomic mass of an element is the mass of an atom of an element relative to the mass of 1/12 the mass of carbon 12. Dear student, इस definition को समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट, the relative atomic mass of an element। रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का क्या होगा? इज द मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का उसके सिंगल एटम का वज़न। ओके, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के सिंगल एटम का वज़न कार्बन नंबर 12 के 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करके जो आएगा वो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। फिर से रिपीट कर लेता हूँ स्टूडेंट में, किसी भी एलिमेंट के एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन नंबर 12 के 12वें हिस्से का जो वज़न होगा उसके कंपैरिजन में जो आएगा उसको बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, the relative atomic mass of an element is the mass of single atom relative to the mass of 1/12 the mass of carbon 12 atom। सिंपल, कार्बन जिसका मास नंबर होता है 12, उसके 12वें हिस्से का जो वज़न होगा उसके मुकाबले में बाकी एलिमेंट के जो एटम होंगे उनका वज़न जो होगा जो आएगा उसको बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। बहरहाल इसको एक डायग्राम से इजीली समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट, कार्बन 12 का मतलब होता है कि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसका मास नंबर क्या होता है 12। 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12, C12। ओके, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हम बाद में डिफाइन कर लेंगे आइसोटोप्स को भी। इस कार्बन 12 के अंदर
12 यूनिट होते हैं। ओके, इसके 12वां हिस्से का जो वज़न होगा, इस कार्बन 12 जिसका मास नंबर 12 है, इसका जो 12वां हिस्सा होगा उसके कंपैरिजन में बाकी सिंगल एटम का वज़न कितना आएगा, कितना भारी होगा वो एटम, कितना हल्का होगा, उसको बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, मैंने कहा स्टूडेंट कार्बन 12 के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और शुरू में मैंने आपको ये बताया कि कार्बन 12 के अंदर 12 यूनिट्स होते हैं। यहाँ पे तो आपको 18 यूनिट दिखाई दे रहे हैं। 6 + 6 + 6 = 18। याद रखिए कि स्टूडेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो 1836 टाइम हेवियर होते हैं इलेक्ट्रॉन से। इसीलिए साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल कंसिडर किया और कहा कि एक एटम का जो वेट होता है वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने कहा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 12 यूनिट होते हैं, बल्कि 18 नहीं होते। मान लें इसके अंदर 12 यूनिट्स हैं, तो लेट्स सपोज ये कार्बन 12 एटम है जिसके अंदर है हमारे पास 12 यूनिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, इस कार्बन 12 एटम के 12 हिस्से हैं, इसके अंदर 12 यूनिट है। इसका जो एक हिस्सा होगा, ओके, 1 पार्ट्स, 12 पार्ट्स का मतलब है इसके 12वां हिस्सा जो होगा, कार्बन जिसका मास नंबर 12 है, उसका जो 12वां हिस्सा होगा, इसके कंपैरिजन में बाकी एलिमेंट के एटम का वज़न जो आएगा उसको बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्बन 12 का 12वां हिस्सा जो होगा, कार्बन 12 एटम का जो 12वां हिस्सा होगा, उसके कंपैरिजन में बाकी एलिमेंट के एटम का जो वज़न आएगा उसको बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, सिंपली इस साइड कार्बन 12 का 12वां हिस्सा रखेंगे और उसके कंपैरिजन में बाकी एटम कितने भारी हैं, कितने हल्के हैं, इसे उसको बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। ओके, यहाँ तक तो बात स्टूडेंट क्लियर होती है कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है। अब स्टूडेंट, रीज़न फॉर टेकिंग कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड क्यों लिया गया। सोचने की बात है कि किसी और एलिमेंट को क्यों नहीं लिया गया, कार्बन 12 को ही क्यों लिया गया। डी स्टूडेंट, इससे पहले हाइड्रोजन को लिया गया था, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थी। उसके बाद ऑक्सीजन को लिया गया, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो लास्ट टाइम ये कार्बन 12 को लिया गया। इसकी कुछ रीज़न है। फर्स्ट रीज़न इज़ एमंग द कार्बन आइसोटोप कार्बन 12 इज़ मोर स्टेबल। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें से कार्बन 12 जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स है, इसीलिए इसको लिया। सेकेंडली, इसकी जो अबंडेंस है ये 98.98% अवेलेबल है। मतलब अगर आप कार्बन को निकालते हैं तो उसके अंदर कार्बन के 3 आइसोटोप में से आपके पास ये वाला आइसोटोप्स 98% अवेलेबल होता है। थर्ड रीज़न, अवेलेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं ये आपको हर जगह इजीली अवेलेबल, और इसके जो कंपाउंड होते हैं ये ज़्यादातर स्टेबल भी होते हैं। इसके अलावा इसके साथ जब हम एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं तो एलिमेंट के जो मासेस होते थे वो हमारे पास होल नंबर में आते हैं, इसलिए हमने कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड चूज़ किया। ओके, नाउ स्टूडेंट, अब आते हैं स्टूडेंट कि ये जो कार्बन 12 का कार्बन जिसका मास नंबर 12 था, उसके 12वां हिस्सा जो था, इसका वज़न कितना होगा, वो ग्राम में कितना होगा, उसको देखते हैं।
एटॉमिक मास यूनिट और यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ जो मैस आता है बाकी एटम का, उसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस। अब ये जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है, इसका यूनिट क्या होना चाहिए? इसका यूनिट क्या होना चाहिए? उसके लिए हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट और यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। First of all, the unit used to express the relative atomic mass is called atomic mass unit. Atomic mass unit, student, relative atomic mass को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है उसको बोलते हैं relative atomic mass, atomic mass unit. relative atomic mass को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट होता है उसको के साथ लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अब स्टूडेंट, वो जो कार्बन 12 जिसके अंदर 12 यूनिट थे, कार्बन 12 एटम जिसके अंदर 12 यूनिट थे, उस एक यूनिट का जो वज़न होगा उसको बोलेंगे 1 AMU या एटॉमिक मास यूनिट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, जैसा कि 1 किलोग्राम के अंदर होते हैं 1000 ग्राम। ओके, 1 kg के अंदर होते हैं 1000 ग्राम। तो 1 kg का यूनिट क्या होता है? 1 kg के अंदर फर्दर यूनिट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्राम। 1 ग्राम एक यूनिट है। इसी तरह कार्बन 12 का एक यूनिट क्या होगा? उसके अंदर 12 यूनिट थे, तो एक यूनिट क्या होगा? एक यूनिट सिंपल 12वां हिस्सा एक यूनिट होगा। 1 एटॉमिक मास unit is defined as the mass of exactly equal 1/12 of the mass of carbon 12 atom. कार्बन 12 एटम का जो 12वां हिस्सा होगा उसको हम 1 यूनिट कंसिडर करेंगे। कार्बन 12 का 12वां हिस्सा जो होगा उसको हम 1 यूनिट कंसिडर करेंगे। ओके, इसको फार्मूले से इस तरह लिख सकते हैं कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट होगा कार्बन मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइड बाय 12। इसका मतलब है कि कार्बन नंबर जिसका मास नंबर 12 है उसका जो 12वां हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे 1 AMU। ओके, 1 यूनिट बोलेंगे। जैसा कि सिंपली मैंने आपको ये बताया कि कार्बन 12 के अंदर 12 यूनिट होते हैं, तो 1 यूनिट को क्या बोलेंगे? 1 AMU। इज़ दैट क्लियर? ये हमारे पास फार्मूला 1 आ जाता है कि 1 AMU क्या होता है? 1 AMU इज़ दी मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइड बाय 12। अब स्टूडेंट, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। डियर स्टूडेंट, अगर आप किसी भी एटम के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो इसको बोलते हैं 1 मोल। याद रखिएगा, मोल वाला कंसेप्ट हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जर्नली मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर हम किसी भी एटम के वज़न को, एटम के मास को, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ा था मास नंबर। ओके, mass number of carbon is 12, mass number of hydrogen is 1, mass number of sodium is 23। ओके, अगर हम मास नंबर को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे 1 मोल। किसी भी एटम के मास नंबर को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको बोलेंगे 1 मोल। ओके, 1 मोल कार्बन का वज़न कितना? 1 मोल, जैसा कि एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 ग्राम विच इज़ इक्वल टू 1 मोल। कार्बन 12 जो हैं उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट जो होता है या एटॉमिक मैस जो होता है कार्बन 12 का कितना होता है? 12। उसको हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया जो कि 1 मोल होता है।
या 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम, कि 1 मोल कार्बन एटम जो होंगे उसका वज़न होता है 12 ग्राम। ये दोनों लाइनों का सेम मतलब है, ठीक है, कि 1 मोल कार्बन के अंदर 1 मोल कार्बन एटम का वज़न होता है 12 ग्राम, या आप कार्बन 12 के एटम को का जो मास है, इसको मास 12 होता है, उसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो 1 मोल के इक्वल होता है। और हर कोई भी चीज़ 1 मोल की हो तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं। 1 मोल ऑफ एनीथिंग contains 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। ओके, यहाँ पे कार्बन की बात हो रही तो कार्बन एटम। ओके, 1 मोल कार्बन एटम का वज़न के अंदर इतने कार्बन एटम होंगे। अब स्टूडेंट, 1 मोल के अंदर अगर इतने पार्टिकल्स हैं और आपको ये भी पता चल गया कि 12 ग्राम 1 मोल के इक्वल होता है, 12 ग्राम 1 मोल के इक्वल होता है, और 1 मोल के अंदर होते हैं इतने पार्टिकल्स। ओके, अगर मैं चाहूँ कि 1 कार्बन एटम का वज़न ग्राम में कितना होगा, 12 ग्राम के अंदर होते हैं इतने कार्बन एटम, मुझे चाहिए 1 कार्बन एटम का वज़न ग्राम में। 12 ग्राम में इतने एटम होते हैं तो 1 एटम का वज़न कितना होगा, इसको इस पे डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारे पास 1 एटम ऑफ कार्बन 12 जिसका मैस आ जाएगा 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये मेरे पास आ जाते हैं 1 कार्बन एटम का वेट। अब मुझे 1 कार्बन एटम का वेट नहीं चाहिए, मुझे लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मुझे कार्बन 12 के 12वें हिस्से का वेट चाहिए, क्योंकि 12वें हिस्से को ही हम 1 AMU कहते हैं और 1 AMU को हमने ग्राम में फाइंड आउट करना है। ये तो मेरे पास 1 कार्बन एटम का वज़न आ गया, मुझे 1 कार्बन एटम का वज़न नहीं बल्कि 1/12 पार्ट का वज़न चाहिए। 1 AMU तो 1/12 पार्ट है ना, तो इस फार्मूले को अगर इस फार्मूले में पुट करते हैं, मास ऑफ 1 कार्बन एटम की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, डिवाइड बाय 12 कर दें, तो आपके पास 1 AMU की वैल्यू ग्राम के अंदर आ जाएगी। जैसा कि स्टूडेंट 1 AMU इज इक्वल टू 1.993 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम 1 कार्बन एटम का वज़न होता है, इसके 12 पे डिवाइड कर दें तो 1 पार्ट का वज़न आपके पास ग्राम में इतना आता है और किलोग्राम में इतना आ जाएगा। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और उसका यूनिट क्या होगा। डी स्टूडेंट, चलिए मेन पॉइंट्स को हम दोबारा रिवाइज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास स्टूडेंट, एटॉमिक मास is the mass of single atom of an element is called atomic mass. And measuring of atomic mass, measuring such a small mass of atom in gram or kilogram is from 10⁻⁻24 to 10⁻⁻22 gram. And measuring a small masses are not only impossible but also impractical work. Therefore, it was recommended to express the masses of atom by comparing with the mass of standard atom. The atom chosen nowadays as a standard for comparison is carbon 12 atom, which has a mass of exactly 12 units. Next is relative atomic mass. The relative atomic mass of an element is the mass of an atom of that element relative to the mass of 1/12 the mass of carbon 12 atom. Next is reason for taking carbon 12 atom as a standard. Among the carbon isotope, carbon 12 is the most stable isotope. Second reason is the natural abundance of carbon 12 is 98.98%. Third reason is availability and stability of carbon compound.
Fourth reason is relative atomic masses of other atoms come in whole number. Next is atomic mass unit in grams. Atomic mass unit and atomic mass unit in gram. What is atomic mass unit? One atomic mass unit is the mass of carbon 12 part of carbon 12 atom. And atomic mass unit in gram. The value of atomic mass unit in gram. We see that 1 mu is mass of one atom of carbon 12 divided by 12. And atomic weight of carbon 12 is equal to 12 gram, which is equal to 1 mole, or simply 1 mole of carbon 12 atom is equal to 12 gram. And 1 mole of anything contains 6.023 into 10 raised to power 23 particles. Particles means here carbon atoms. And if we find out 1 atom of carbon 12 in gram, so divide 12 gram divided by 6.023 into 10 raised to power 23 carbon atoms, we get 1 atom of carbon 12 in gram. In order to get 1/12 part of carbon 12 single atom units, we put this value in above formula. We get the value of 1 mu in gram, which is equal to 1.67 into 10 raised to power minus 24 gram, or 1.67 into 10 raised to power minus 27 in kilogram. So these are the main points of today's lecture. Now student, your homework is write down whole lecture on your worksheet. Thanks.